Hello students, welcome to my last minute revision videos. Let's begin with part 2 of the derivative chapter where I am going to cover the last 3 exercises 3.4, 3.5 and 3.6. 3.4 exercise is pertaining to implicit function. So let's begin with this. Now, how to identify implicit function? First of all, y equal to f of x is known as explicit function. मतलब कोई भी इक्वेशन y equal to in the form of x रहता है, that is known as explicit function. But where we get the combination of x and y, that is implicit. That's why I have written ax square plus 2hxy plus by square. That means यहाँ पे आपको x वेरिएबल भी दिखाई देगा and y वेरिएबल भी दिखाई देगा. Then this type of equation is known as implicit function, written as f of x comma y equal to c. Now let us begin with the first sum of this implicit pattern. Here we will observe the equation is x cube plus y cube plus 4x cube y equal to 0. That means here you will find that there are two variables x and y. Such type of equation is known as implicit function. Clear? Now let's start how to solve such type of sums. Therefore, let's begin. X cube plus y cube plus 4x cube y equal to 0. Differentiating with respect to x, we get. Now let us start differentiating. Here I'll get 3x square, right? Because power function, right? So 3 नीचे आ जाएगा 3x square. In the same manner y cube भी 3y square because 3 नीचे आ जाएगा, एक ऊपर से लेस हो जाएगा being power function 3y square. बट जहाँ पे y वेरिएबल होगा वहाँ पे आपको पता है dy by dx भी लिखना पड़ता है because this is outer derivative और y का आपको inner derivative निकालना पड़ेगा, that is dy by dx. प्लस 4 being multiple मैं उसको साइड में रखूंगी and x cube into y I'll solve this by product rule. This will be u, this will be v. So u term as it is, तभी आपको डेरिवेटिव निकालना होता है v का, that is y का निकालेंगे प्लस v term as it is, तभी डेरिवेटिव निकालेंगे u का, that is x cube का, right, is equal to 0, right? That is equal to 3x square as it is, 3y square into dy by dx, right, plus 4 in bracket x cube. Now यहाँ तक मैंने same लिखा है. Now let us start finding out the derivative. Into, now derivative of y is nothing but dy by dx. So x cube derivative of y is, I'll write dy by dx. So here I calculated the derivative of y plus y into, now I will calculate derivative of x cube. So this will be again by power function 3x square. So here this will be like this. After this what we need to do is I'll just open this bracket 3x square plus 3y square into dy by dx plus, now I'll open the bracket 4 into x cube, 4x cube into dy by dx. Again 4, ये पूरे ब्रैकेट के लिए मल्टीपल है तो 4 will get multiplied to this term as well plus 4 into 3, that becomes 12. So I'll write 12x square into y. Clear? Is equal to 0. Okay. Now what we'll do is now from this step what I'm going to do is जो dy by dx के टर्म्स है ना वो हम लोग यहाँ पे रखेंगे एंड विदाउट dy by dx के जो टर्म्स है हम लोग को वहाँ पे लेके जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल ये टर्म और ये टर्म मैं यहाँ पे रखूंगी दिस साइड और ये टर्म जो विदाउट dy by dx है and this term I am going to take on that side. Alright.
दैट इज इक्वल टू के वो साइड में. सो लेट इज स्टार्ट. 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 4x क्यूब इंटू dy बाई डी एक्स. तो ये दोनों dy बाई डी एक्स के आ गए. दैट इज इक्वल टू दिस माइनस करके मैं दोनों लेके जाऊंगी बिकॉज ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स है. तो इक्वल टू के उस साइड जाने के बाद दोनों निगेटिव हो जाएंगे. सो हियर इट विल बी 3x स्क्वायर एंड प्लस 12x square y. Clear? So after this what I will do, I'll take dy by dx common, dy by dx from both these terms. So dy by dx in bracket 3y square plus 4x cube, right, is equal to, ये ऐसे ही रहेगा, minus into bracket 3x square plus 12x square y. Clear? After this now what I will do, we are interested in calculating derivative. तो dy by dx को मैं यहाँ पे रखती हूँ एंड दिस ब्रैकेट में इक्वल टू के साइन के यहाँ पे लेके जाऊंगी. सो दैट व्हाट विल हैपन, दिस इज मल्टीपल टू दिस, यहाँ पे जाने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा. सो देयरफॉर फाइनल dy by dx इज इक्वल टू, ये फर्स्ट आ जाएगा माइनस इंटू ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर y होल डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब. बट अगेन दिस इज नॉट अ फाइनल सोल्यूशन. वाई? बिकॉज अगर आपको कुछ कॉमन मिल रहा है तो आपको उसको जितना हो सके उतना आपको शॉर्ट करना है. सो व्हाट आई विल डू, देयरफॉर dy by dx is equal to, now I can take not only 3 but I can take x square also from this two terms as a common. So I will take minus 3x square common दोनों टर्म्स से. सो अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 4 जा, तो 4x स्क्वायर तो कॉमन निकला ही है, तो 4y होल डिवाइडेड बाय, नीचे में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है. सो दिस विल बी रिमेन सेम. नाउ दिस विल बी द फाइनल सॉल्यूशन. नाउ द सेकंड पैटर्न फ्रॉम implicit function is, if e raised to x plus e raised to y is equal to e raised to x plus y, then show that dy by dx is equal to minus e raised to y minus x. तो एक ये पैटर्न का वो पूछ लेते हैं. तो लेट अस स्टार्ट हाउ टू कैलकुलेट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सम दिया है, ओके, उसे हम लोग नंबर 1 करके लिख देंगे. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, e raised to x plus e raised to y is equal to e raised to x plus y, right? This we call it as first. Now differentiating with respect to x on both sides we get, अभी हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं. यहाँ पे e raised to x का तो e raised to x से डेरिवेटिव होता है, आपको पता है. सो राइट, e raised to x ओनली प्लस नाउ e raised to y का भी आउटर डेरिवेटिव जस्ट लाइक e raised to x का जैसे e raised to x से होता है, वैसे e raised to y का भी e raised to y ही होगा. बट अगेन एज देयर इज y वेरिएबल, y का इनर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दैट इज dy by dx, एंड देन बोथ विल गेट मल्टीप्लाई. सो इट विल बी लाइक दिस, e raised to y का e raised to y आउटर डेरिवेटिव इनटू मल्टीप्लाई बाय इनर डेरिवेटिव dy by dx. तो स्टूडेंट्स, मैंने बोला था कि जहाँ जहाँ पे y वेरिएबल होगा, जब आप डेरिवेटिव निकालोगे आपको dy by dx टर्म वहाँ पे लिखनी है. आफ्टर दैट यहाँ पे अगेन, यहाँ पे आउटर डेरिवेटिव जस्ट लाइक e raised to x का जैसे e raised to x होता है, वैसे इसका भी e raised to x plus y का e raised to x plus y ही होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर डेरिवेटिव, बट अगेन इनर डेरिवेटिव विल गेट मल्टीप्लाई, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x plus y हम लोग निकालेंगे इसका. नेक्स्ट स्टेप, e raised to x plus e raised to y into dy by dx is equal to e raised to x plus y, यहाँ तक सेम है. अभी यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे इनटू x का होता है 1, y का होता है dy by dx. Now e raised to x plus e raised to y into dy by dx is equal to, I'll open this, so this will be e raised to x plus y into 1 e raised to x plus y only plus e raised to x plus y into dy by dx. So e raised to x plus y into dy by dx, right?
नाउ अगेन व्हाट आई विल डू, dy बाई dx को मैं यहाँ पे लेके आती हूँ एंड विदाउट dy बाई dx टर्म को वहां पे लेके जाऊंगी. सो दिस विल बी लाइक दिस, e रेज टू y इंटू dy बाई dx, बिकॉज dy बाई dx की टर्म मुझे यहाँ पे लेने हैं, ये यहाँ पे आएगा. सो माइनस e रेज टू x प्लस वाई इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे तो वैसे ये विदाउट dy बाई dx का टर्म x प्लस वाई, और ये यहाँ पे आएगा तो इट विल गेट माइनस. राइट. नाउ आफ्टर दिस dy बाई dx को कॉमन ले लूंगी, dy बाई dx इन ब्रैकेट e रेज टू y माइनस e रेज टू x प्लस y इज इक्वल टू e रेज टू x प्लस y माइनस e रेज टू x. But friends, e raised to x plus y is what? E raised to x plus e raised to y. So from 1, I am going to substitute in this term e raised to x plus e raised to y over here and here also. Clear? So let's start. Therefore, dy by dx is equal dy by dx in bracket e raised to y. Right? Now यहाँ पे अगर मैं e raised to x plus y के जगह पे if I am going to substitute this, then both will be negative. Why? Because यहाँ पे already negative sign, negative symbol is there. So this will be like this, minus e raised to x minus e raised to y. Clear? And dy by dx को मैंने यहाँ पे लिख दिया है. In the same manner, e raised to x plus y के जगह पे मैं अभी ये लिखूंगी, e raised to x plus e raised to y minus e raised to x जैसे के जैसे. Clear? Now after this, therefore माइनस ई रेज टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आ जाएंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ई रेज टू वाई. एंड देन द फाइनल आंसर विल बी dy by dx इज इक्वल टू, बिकॉज हमें ये दिखाना है dy by dx इज इक्वल टू, राइट. ये e रेज टू वाई वैसे के वैसे ही था, तो यहाँ पे e रेज टू वाई वैसे के वैसे रहेगा, राइट. बट ये e रेज टू x, राइट, ये नीचे आ जाएगा. सो माइनस e रेज टू x. सो बट अल्टीमेटली वी वांट टू शो लाइक दिस. सो dy बाई dx इज इक्वल टू ये माइनस e रेज टू y, क्योंकि ये माइनस कहीं पे भी हम लोग लिख सकते हैं. एंड एज मैं यहाँ न्यूमरेटर को शिफ्ट करूँ तो पावर विल बिकम नेगेटिव लाइक दिस, माइनस x. So this will be my final answer. Okay, now students, this is the third pattern from implicit function, जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि x y combinations are also there and powers are also there. So that means यहाँ पे combination of implicit plus logarithmic function आपको implement करना है. So this is the third pattern. So let's start how to calculate. Now यहाँ पे क्या करेंगे? First I'll write down again the sum x raised to 7 into y raised to 9 is equal to x plus y raised to 16. So this is the main sum. Differentiating both sides. Now कैसे differentiate करना है? First I'll take the log. Okay. So before differentiating, before differentiating I have to take log. Taking log on both sides, we get log of x raised to 7 into y raised to 9 is equal to log of x plus y raised to 16. Now after this, बेसिक लॉज ऑफ लॉगरिथम्स के एंगल से जहाँ पे प्रोडक्ट होता है वहाँ पे एडिशन होती है. सो आई टेक लाइक दिस, देयरफॉर log of x raised to 7, now यहाँ पे एडिशन हो जाएगी, प्लस log of y raised to 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर जो आपका होता है वो log के यहाँ पे मल्टीपल हो जाता है, तो 16 will come down, 16 will become multiple of this, 16 log of x plus y. Clear? Now अगेन सेम यहाँ पे भी पावर्स है तो वो भी हम लोग मल्टीपल कर देंगे. देयरफॉर 7 log x प्लस 9 log y, राइट, इज इक्वल टू, ये वैसे के वैसे रहेगा, 16 log of x प्लस y. क्लियर?
Now we'll start differentiating. Differentiating both sides with respect to x, we get. now यहाँ पे कैसे करना है देखिए, यहाँ पे 7 मल्टीपल है तो 7 को हम लोग साइड में रखेंगे एंड log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, सो दिस विल बिकम 7 अपॉन x प्लस 9 मल्टीपल है साइड में हो जाएगा, log x की तरह log y भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, बिकॉज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x है, log y का भी 1 अपॉन y हो जाएगा. बट एज आई सेड अर्लियर, जहाँ जहाँ पे y वेरिएबल है वहाँ पे आपको dy by dx लिखना ही है, बिकॉज दैट इज द इनर डेरिवेटिव ऑफ y. सो आई राइट लाइक दिस 9 अपॉन y, ये हुआ log y का डेरिवेटिव इंटू dy by dx, ये हुआ y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू. नाउ यहाँ पे भी log x जैसे ट्रीटमेंट दे देंगे. सो log x का 1 अपॉन x होता है तो इसका भी 1 अपॉन x प्लस y होगा. सो आई राइट लाइक दिस 16 अपॉन x प्लस y, राइट. बट अगेन आपको इनर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इनटू x का डेरिवेटिव होता है 1 एंड y का डेरिवेटिव होता है dy by dx. सो ये डेरिवेटिव होगा इनका. क्लियर? नाउ आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, I'll open bracket over here. So therefore 7 upon x plus 9 upon y into dy by dx is equal to, now I'll open this. ये टर्म पहले 1 से मल्टीप्लाई होगी, आफ्टर दिस ये टर्म आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस. सो 16 upon x plus y into 1 will become same 16 upon x plus y only, plus this into this, so 16 upon x plus y into dy by dx. Now after this what I will do, again same dy by dx को एक साथ में कर लेते हैं, विदाउट dy by dx को वो साइड में कर लेते हैं. So therefore 9 upon y into dy by dx, यहाँ की टर्म ऐसे ही रहेगी, ये यहाँ पे आ रही है तो इट विल बिकम माइनस 16 अपॉन x प्लस y इंटू dy by dx इज इक्वल टू, ना यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये यहाँ पे रहे तो 16 अपॉन x प्लस y, और ये विदाउट dy by dx के लिए यहाँ पे आ जाएगी माइनस 7 अपॉन x. क्लियर? नाउ आई टेक dy by dx कॉमन फ्रॉम दिस टू टर्म्स, देयरफॉर यहाँ पे आएगा 9 अपॉन y माइनस 16 अपॉन x प्लस y, तो ब्रैकेट डाल देती हूँ एंड dy by dx को कॉमन ले लेती हूँ. क्लियर? और आगे ऐसे कैसे रहेगा, सेम 16 अपॉन x प्लस y माइनस 7 अपॉन x. Now what I will do next is, अभी हम लोग यहाँ पे ना LCM निकालेंगे. ओके, सो 9 को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगी, 16 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी. सो दिस विल बी लाइक दिस 9 इंटू एक्स प्लस वाई, सो 9x प्लस 9y, राइट, माइनस अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस 16y, राइट, होल डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स प्लस y, दिस विल बी माई LCM फॉर दिस. क्लियर? इंटू dy by dx वैसे के वैसे ही, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम होगा 16 इंटू एक्स एंड 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगी, जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे मैंने किया था वैसे ही. तो 16x माइनस 7x, बिकॉज यहाँ पे माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, 7x माइनस 7y होल डिवाइडेड बाय x, अभी यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस वाई. क्लियर? आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे 9y माइनस 16y, so this will become minus 7y. So therefore I'll write like this 9x minus 7y upon y into bracket x plus y, right, into dy by dx is equal to, यहाँ पे भी सेम 16x minus 7x will give me 9x minus 7y, यहाँ पे भी x into bracket x plus y वैसे के वैसे ही. Now after this what I will do, therefore dy by dx find out करना है ultimately. So dy by dx is equal to, ये पहले टर्म यहाँ पे लिख देती हूँ 9x minus 7y upon x into bracket x plus y, right, and now ये जब टर्म मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगी तो ये इनवर्स हो जाएगी. So into यहाँ पे y into bracket
x plus y whole divided by 9x minus 7y. Now we'll observe that this will get cancelled. So इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ. So ultimately therefore और यहाँ पे ये x plus y और x plus y भी कैंसिल हो जाएगा. So ultimately dy by dx is equal to y upon x. तो वही शो करना था. Hello students, let's start with the next exercise, exercise 3.5, which is pertaining to the parametric function. Parametric function means what? First of all, if x equal to f of t and y equal to g of t are two differential functions of a parameter t such that y is differentiable function of x, then in that case dy by dx कैसे फाइंड आउट करना है? It is dy by dx is equal to dy by dt and dx by dt. मतलब आपको y का डेरिवेटिव निकलना है with respect to t and x का डेरिवेटिव निकलना है with respect to t and then दोनों को आप डिवाइड करोगे then you will get dy by dx. Clear? Now कैसे होगा? First sum हम लोग स्टार्ट करते हैं. Find dy by dx if x equal to 2at square and y equal to at raised to 4. Now here you have observed that equations they are in the form of t, parameter t. तो ये nothing but क्या है हमारा भी parametric function. Let's start. Now पहले क्या करना है? dx by dt भी निकालना है, dy by dt भी निकालना है and दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे. So start करते हैं. First x equal to 2at square differentiate with respect to t. अब यहाँ पे t पैरामीटर है हमारा. This will be like this. Therefore dx upon dt is equal to, now यहाँ पे 2a will be held as constant and t square x को जैसे पावर फंक्शन जैसे चलेगा that will be t square का होगा 2t. So 2t into 2a that gives you 4at, right? 4at. This will be the derivative of dx upon dt. ये हमारा होगा फर्स्ट. Now ये काम हो गया. अभी निकालना है dy by dt. उसके लिए y क्या है हमारे पास? y इक्वल टू at रेज टू 4. तो dy by dt अभी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t हम लोग निकालेंगे. a अगेन यहाँ पे हम लोग मल्टीपल जैसे साइड में रखेंगे. t रेज टू 4 विल बी 4t क्यूब बाय पावर फंक्शन. सो दिस विल बी 4at क्यूब. मतलब t रेज टू 4 का 4t क्यूब होता है. a will be multiple. So ultimately हमारे dy by dt ये हो गया. This is second. चलो therefore last dy by dx is equal to, पहले क्या करेंगे? dy by dt लिखेंगे. That means this one 4at cube divided by, बाद में क्या लिखेंगे? dx upon dt. That is हमारा 4at. Right? So now ये 4a will get cancelled. टी क्यूब अपॉन टी, तो टी भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एक से. सो अल्टीमेटली विल गेट टी स्क्वायर. सो डी वाई बाई डी एक्स आपका फाइनल आंसर रहेगा टी स्क्वायर. ओके, द नेक्स्ट पैटर्न फ्रॉम पैरामेट्रिक इज फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू यू प्लस 1 अपॉन यू द ब्रैकेट स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2 raised to u plus 1 upon u. So here the parameter is u. So we need to find out dy by du and dx by du to get dy by dx ultimately. So let's start. First I am going to write x equal to u plus 1 upon u the bracket square. This is my first. Now differentiating with respect to u, this will be dx upon du is equal to, now by power function x square का अगर आपका होता है तो 2x होता है डेरिवेटिव. इन द सेम मैनर ये पूरा अगर आप x पकड़ के चलोगे तो दिस विल बी x स्क्वायर का अगर 2x होता है तो यहाँ पे भी 2 इंटू ब्रैकेट u प्लस 1 अपॉन u हो जाएगा. बट अगेन आई सेड दिस इज आउटर डेरिवेटिव. अभी इनर डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव ऑफ दिस ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. तो ये कैसे होगा?
इंटू यू का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, तो इन द सेम मैनर यू का डेरिवेटिव होगा 1 एंड 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन यू का भी होगा माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर। तो ये आ गया इनका इनर डेरिवेटिव। क्लियर? देन सेकंड हम लोग करेंगे अभी इसका y इज इक्वल टू 2 रेस टू u प्लस 1 अपॉन यू, ये हमारा सेकंड है, राइट? तो dx बाई डी होगा। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट dy बाई डी यू। अगेन सेम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u, dy बाई डी यू इज इक्वल टू, नाउ ये हम लोग कंपेयर करेंगे a रेस टू x के साथ। सो a रेस टू x का होता है a रेस टू x log a। सो इन द सेम मैनर 2 रेस टू ये जो है उसको हम लोग a रेस टू x के जैसे चलाएंगे, तो दिस विल बी 2 रेस टू दिस इंटू log 2। ये हमारा होगा डेरिवेटिव इसका, आउटर डेरिवेटिव। अगेन सेम, इनर डेरिवेटिव को हम लोग बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो dy बाई डी यू इज इक्वल टू a रेस टू x log a जैसे 2 रेस टू u प्लस 1 अपॉन u इंटू log 2। ये हुआ हमारा आउटर डेरिवेटिव। अब इसका इनर निकालते हैं, तो इंटू u का होगा 1 एंड 1 अपॉन u का होता है माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, इफ यू रिमेंबर दैट। ओके, तो ये इनर डेरिवेटिव इनके लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फाइनल dy बाई डी यू इज 2 रेस टू u प्लस 1 अपॉन u इंटू log 2 इंटू दिस। क्लियर? नाउ लास्ट आंसर, therefore dy by dx is equal to, first हम लोग लिखेंगे dy by du, then we will divide this by dx by du. So let's start. I'll write down this first. log 2 पहले लिख लेती हूँ, ये कांस्टेंट है, इनटू ये बाद में लिखती हूँ 2u रेस टू, मतलब 2 रेस टू u प्लस 1 अपॉन u, राइट? इनटू ये वैसे के वैसे रहेगा 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर। ये पूरा का पूरा आपका आएगा dy बाई डी यू होल डिवाइडेड बाय, नाउ अभी हम लोग लिखेंगे dx अपॉन डी यू। तो ये मैं लिखूंगी 2 इंटू ब्रैकेट u प्लस 1 अपॉन यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स विल ऑब्जर्व दैट ये और ये कट हो जाए, कैंसिल हो जाए, राइट? बट डू नॉट कैंसिल दिस। ये इसके लिए पावर है, 2 रेस टू समथिंग है और ये इसका पावर नहीं है, तो ये और ये ब्रैकेट कैंसिल नहीं होगा। सो फाइनल आंसर इज देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू log 2 इंटू 2 रेस टू u प्लस 1 अपॉन u होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू u प्लस 1 अपॉन u। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। Students, this is the last pattern from the parametric function. If x equal to 4t upon 1 plus t square and y equal to 3 into bracket 1 minus t square upon 1 plus t square, then show that dy by dx is equal to minus 9x upon 4y. So here what we need to do is, we'll calculate dx, मतलब derivative of x with respect to t, that is dx upon dt, derivative of y with respect to t, that is dy upon dt, then we'll have dy by dx का solution, right? After that, ये हुआ हमारा ये साइड, LHS साइड। RHS के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे माइनस 9x अपॉन 4y। ये इसका जो भी आंसर आएगा, वी वांट टू शो दैट इसका आंसर इज इक्विवेलेंट टू दिस आंसर। क्लियर? नाउ हाउ टू डू दैट? लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव रिटन इफ x इक्वल टू 4t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, देन विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, विल गेट dx अपॉन dt। ओके, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t हम लोग निकालेंगे। नाउ यू विल ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में, सो हियर विल अप्लाई कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या है डेरिवेटिव का? ये हमारी u टर्म रहेगी, ये हमारी v टर्म रहेगी, u बाई v। ओके, सो इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ u बाई v, देन हम लोग कोशेंट रूल ऐसे बोलते हैं v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। क्लियर? तो पहले हम लोग v टर्म वैसे के वैसे लिखेंगे, बाद में विल फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ u, माइनस बाद में u टर्म वैसे के वैसे लिखेंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइड बाय वी स्क्वायर। सो लेट्स स्टार्ट बाय कोशेंट रूल। 1 प्लस टी स्क्वायर
इनटू, मतलब b वैसे के वैसे लिखना है, तभी डेरिवेटिव निकालना है किसका, u का। तो 4t का डेरिवेटिव आएगा 4x जैसा 4, सो आई एम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटिंग द डेरिवेटिव 4, राइट। बीच में माइनस है, प्रोडक्ट रूल में प्लस था, क्वोशिएंट रूल में माइनस है, माइनस। अभी u टर्म वैसे के वैसे रहेगी 4t, तभी डेरिवेटिव निकालना है 1 प्लस टी स्क्वायर का। 1 बीइंग कांस्टेंट नंबर, डेरिवेटिव 0, एंड टी स्क्वायर का आएगा 2t, एंड होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्क्वायर, सॉरी होल ब्रैकेट स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपका dx by dt है। अगेन dx by dt is equal to, what I will do, I will multiply this 4 into 1 4, 4 into t square plus 4t square, right, minus इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 8t square whole divided by 1 plus t square the bracket square. So that means I'll get dx upon dt as 4 plus 4t square minus 8t square will give me 4 minus 4t square whole divided by 1 plus t square the whole bracket square. तो ये हो गया हमारा dx upon dt. Let's calculate dy by dt. So y is equal to 3 into bracket 1 minus t the t square upon 1 plus t square. अगेन 3 बीइंग मल्टीपल हम लोग साइड में ले लेंगे, एंड अगेन यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि डिवीजन के फॉर्म में, तो हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट रूल। लेट्स स्टार्ट। ये हमारी u टर्म है, ये हमारी v टर्म है। सो देयरफॉर dy by dt इज इक्वल टू 3 बाहर रहेगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट 1 प्लस टी स्क्वायर वैसे के वैसे रहेगा v टर्म इनटू, जब डेरिवेटिव निकालते हैं u का, 1 का 0 हो जाएगा, इसका माइनस 2t, बीच में माइनस साइन होता है बिकॉज क्वोशिएंट रूल है, एंड 1 माइनस टी स्क्वायर वैसे के वैसे u टर्म, तभी डेरिवेटिव निकालेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर का, दैट इज अगेन 1 का 0 टी स्क्वायर का 2t होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर द ब्रैकेट स्क्वायर बिकॉज v स्क्वायर होता है। क्लियर। देयरफॉर dy by dt इज इक्वल टू 3 ना, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हुआ हमारा माइनस 2t, तो माइनस 2t इंटू 1 माइनस 2t, माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर विल गिव मी माइनस 2t क्यूब। यहाँ पे भी 2t इंटू 1 2t, बट माइनस हो जाएगा माइनस 2t, एंड माइनस टी स्क्वायर इंटू 2t विल गिव मी माइनस 2t क्यूब, बट माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो प्लस 2t क्यूब अगेन डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर द ब्रैकेट स्क्वायर। तो आ जाएगा हमारा dy by dt. Now after this what we need to do is, now dy by dt is equal to 3 बाहर ही है, माइनस 2t, ये प्लस 2t क्यूब, माइनस 2t क्यूब will get cancelled, minus 2t will give me minus 4t, but minus 4t will get multiplied by 3, so that gives me minus 12t divided by 1 plus t square the bracket square. Now what I will do, I'll just rub this. मैं dx by dt भी यहाँ पे लिख लेती हूँ, because now we are going to start with this. So I'll rub this first of all. dx by dt is equal to 4 minus 4t square whole divided by 1 plus t square the bracket square. Now let's find out dy by dx first. dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt. So now minus 12t divided by 1 plus t square the bracket square upon 4 minus 4t square upon 1 plus t square the bracket square. This will get cancelled, right? That is equal to minus 12t. अब यहाँ पे मैं 4 कॉमन निकाल लेती हूँ, 4 into bracket 1 minus t square. Again 4 will get divided by this, 4 3s are, so final answer will be minus 3t upon 1 minus t square. ये हुआ मेरा dy by dx. Now let's start with finding out this one.
ये हमें ये शो करना है कि -9x/4y भी यही आंसर देता है. So let's start. Now, if they have given you -9x, so -9 हमारा x था यहाँ पे 4t अपॉन 1 + t². तो ये हुआ हमारा -9x डिवाइडेड बाय 4y. तो 4y के लिए हम लोग लिखेंगे 4 × 3 दैट इज 12, बिकॉज 4y बोला है तो 4 तो आएगा ही, और हमारा y है 3 × ब्रैकेट 1 - t² अपॉन 1 + t². सो 4 × 3 मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 12 × ब्रैकेट 1 - t² अपॉन 1 + t². राइट. नाउ व्हाट विल डू, अगेन सेम, ये कैंसिल होगा. क्लियर. सो दैट गिव्स मी -9 × 4t -36t डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 12 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, बट एक काम करते हैं, 12 को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे 1 - t², बिकॉज अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से कॉमन निकालना ही पड़ेगा. 12 3s are, so again I'll be getting -3t upon 1 - t². See. Hello students, now we are at the end of the chapter, exercise number 3.6, which is simplest and easiest exercise because the exercise is pertaining to second order derivative. That means very simple, डेरिवेटिव तो आप निकालते ही हो, उसका फिर से डेरिवेटिव निकालना है, that is known as double order derivative or second order derivative. Clear? That's why I have showed over here derivative, d by dx stands for derivative. So derivative of derivative, so इसे हमें बोलेंगे d2y अपॉन dx², और इसे ऐसे भी बोलते हैं f′x और y′। क्लियर. नाउ सम कैसे आता है, इफ y = √x फाइंड d2y अपॉन dx². तो इससे आप जान जाओगे कि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है. क्लियर. इफ दे आस्क यू ओनली फाइंड dy by dx, then first order, but if they ask you find d2y by dx², then that is second order derivative. Clear. स्टार्ट करते हैं सिंपल. नाउ y इज इक्वल टू √x, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू 1/2√x. तो हमारा आ गया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब इसका भी डेरिवेटिव फिर से निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा d2y by dx². कैसे करेंगे ना, जैसे आपने ये सम एज्यूम किया था उसका आंसर निकाला, अभी आप ये सम एज्यूम करोगे इन प्लेस ऑफ दिस और इसका डेरिवेटिव निकालोगे. सो देयरफॉर व्हाट आई विल डू, dy by dx पहले हम लोग इसको पावर फंक्शन में कर लेते हैं सो दैट यू कम टू नो. मैं 1/2 को साइड में लेती हूँ एंड √x का मतलब होता है x⁻². ओके, बट ये डिनोमिनेटर पोजीशन में, अगर मैं उसे ऊपर लेके जाऊंगी तो इट विल बिकम नेगेटिव, पावर विल बिकम नेगेटिव, सो दिस विल बी x⁻². क्लियर. तो मैं ये ऊपर लेके गई, मतलब दिखा मैंने यही है, बट टू कैलकुलेट डेरिवेटिव दिस विल बिकम सिंपल और इजी फॉर अस टू कैलकुलेट डेरिवेटिव अगर ये पावर फंक्शन में आ जाता है तो. स्टार्ट कर दे. नाउ विल कैलकुलेट. देयरफॉर d2y by dx² इज इक्वल टू, ये 1/2 बिंग मल्टीपल ऐसे कैसे रहेगा, एंड यहाँ पे पावर फंक्शन कैसे होता है, अगर x³ होता है तो आप क्या करते हो, 3 को नीचे लिखते हो, राइट. 3 विल बिकम मल्टीपल और ऊपर से एक कम कर देते हो, सो दिस विल बी 3x², राइट. इन द सेम मैनर ये हम लोग नीचे लेके आएंगे -1/2x, राइट, और ऊपर से एक कम करेंगे, सो दिस विल बी -1/2 -1. क्लियर. देयरफॉर d2y अपॉन dx² इज इक्वल टू 1/2, यहाँ का वैसे के वैसे ही -1/2. ना पहले इसका कर लेते हैं x⁻². ना -1/2 -1, तो एलसीएम अगर निकालोगे तो 2 1s are 2, -1 - 2 विल बिकम -3/2. राइट. नाउ ये हुआ डेरिवेटिव, बट फाइनली थोड़ा ढंग से अरेंज करते हैं. d2y अपॉन dx² इज इक्वल टू 1/2 into 1/2 will give me -1/4, राइट. एंड x⁻³ तो यूजुअली हम लोग मैथ्स में निगेटिव पावर नहीं रखते तो उसे नीचे लेके आते हैं, सो दिस विल बी -1/4. देन
इंटू 1/x⁻³ पॉजिटिव 3/2 बिकॉज मैंने आज इसको नीचे लेके आई, राइट। सो फाइनल आंसर इज -1/4x⁻³ This will be the final answer. Okay, now the second pattern from second order derivative is y equal to e⁻²x plus 1. Okay, so let's start how to find out. So they have asked you to find out d2y upon dx square. Clear? स्टार्ट करते हैं। पहले इसका पहले डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर वाला। therefore dy by dx is equal to, now e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x। इन द सेम मैनर e⁻x हम लोग उसको एज्यूम करेंगे और हम लोग पहले आउटर डेरिवेटिव निकालेंगे। e⁻x ही होता है, तो यहाँ पे भी e⁻2x plus 1 ये हुआ हमारा आउटर डेरिवेटिव। बट अल्टीमेटली यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 2x plus 1 है, तो इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विच इज आई कैन से एज इनर डेरिवेटिव। सो दैट विल गेट मल्टीप्लाइड। सो इनर डेरिवेटिव के लिए 2x का डेरिवेटिव होता है 2 और 1 का डेरिवेटिव बीइंग कांस्टेंट नंबर 0, तो इंटू 2 ही आएगा। तो अल्टीमेटली हमारा dy by dx इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2e⁻²x plus 1। ये हमारा आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ अगेन वी नीड टू हैव d2y by dx स्क्वायर, तो उसके लिए इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो हम लोग अभी ये सम करके एज्यूम करेंगे। देयरफॉर d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीइंग मल्टीपल, मैं साइड में लिखती हूँ, इसका डेरिवेटिव निकालूंगी। अगेन सेम e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, तो इसका भी आउटर डेरिवेटिव e⁻2x plus 1। क्लियर? बट अगेन यहाँ पे x नहीं है, 2x plus 1 है, तो इनर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। 2x का डेरिवेटिव 2 एंड 1 का डेरिवेटिव 0। सो फाइनल d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 e⁻2x plus 1। तो हमारा आएगा फाइनल आंसर।